So today we are going to cover full design of the piston. You know, in the last class we have discussed about the design of the piston head only. You know, so piston contains so many parts. It contains piston head, it contains piston rings, it contains piston pin. You know, so many parts are involved in the design of the piston. हाँ, आप मुझे सुन पा रहे हैं आप सभी? यस एक सर। बार हाँ सुन पा रहे हैं, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो तो बताइएगा मुझे। तो in the last class we have discussed about initial design, that is piston head design only. In this class we will cover the full design, all its parts including pin and everything, and we will solve a full numerical also, in which all the data about the piston has to be calculated through the design process. So dimension thickness of the piston head that we have covered in the last class, there are two criteria. One is strength criteria. As per strength criteria, the thickness is calculated by this formula. D is bore diameter, P max is the maximum pressure. And by heat dissipation criteria, thickness is calculated by this formula. BSFC is brake specific fuel consumption, brake power, high calorific value, K is thermal conductivity, delta T is temperature difference between the center of the piston and the edge of the piston, and X is the percentage of the heat absorbed by the piston. That this design we have covered in the last class, तो मैं भी इसको short में ही आपको explain कर रहा हूँ, है ना. Precaution when you are using this formula. So there is unit compatibility is must. This formula gives the answer in meters. In everywhere we are getting the answers in millimeter. By strength criteria, we put D in millimeter, P max is Newton per mm square, sigma T is also Newton per mm square. So we get the answer in millimeter. But by this formula, because thermal conductivity is involved in this, and the unit of thermal conductivity involves meter. So it is watt per meter degree Celsius. So the unit compatibility for this is, let first brake specific fuel consumption, the unit. सर एक बार नोटेशन बता दीजिए वाली हीट डिसिपेशन क्राइटेरिया की. By heat dissipation criteria, the notations are BSFC means brake specific fuel consumption. It is the fuel consumption per kilowatt power per second. तो इसकी जो यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम्स पर किलोवाट पर सेकेंड, है ना. हाउ मच फ्यूल इज कंज्यूम्ड per second per kilowatt, that is brake specific fuel consumption. Next is brake power. So unit of brake power is taken in kilowatt, because BSFC in kilowatt, so kilowatt will cancel out kilowatt. That's why BP has always to be put in kilowatt in this formula. And HCV is higher calorific value. The unit is joules per kg. For petrol and diesel, you can assume higher calorific value as 42,000 kilojoule per kg. So it is, when converted to joule, it is 42,000 into 1000 joules per kg, or you can say 42 into 10 to the power 6 joule per kg for the petrol or diesel. Okay sir. And K is thermal conductivity, delta T is the temperature difference, and X is the percentage. Generally it is taken 5%. So it is the percentage that how much heat is absorbed by the piston head. Actually, heat is generated in the cylinder due to the burning of the gases. So whole heat is not absorbed by the piston head. A part of that heat is absorbed. So for the calculation purpose, designer assumes that 10% or 5% heat is absorbed by the piston head. So X is the percentage. General value of X is 0.05 if not mentioned in the question. So this part we have covered in the last class. And thickness of the piston barrel is always equal to the thickness of the piston head. So it also has been covered. और अभी आज यहाँ से third point जो है, design of the piston rings, we will understand how the design will flow. So after designing the piston head and piston barrel, we will go for the design of the piston rings. Piston rings are further divided into two rings. Number one is the oil scraper rings, and one is the, दो तरह की रिंग है, दोनों का पर्पस सील करने के लिए है. तो इसमें दो पॉइंट इन्वॉल्व हैं. रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन इज मोस्ट वाइडली यूज्ड. The diameter of the piston ring is slightly larger than the cylinder bore. Cylinder bore के diameter से piston pin का diameter थोड़ा सा ज्यादा रखा जाता है ना. ऐसा रखने से क्या होता है, it will facilitate the piston ring
to fit into the grooves on the piston barrel and go into the cylinder bore, a part of the piston ring is cut off, है ना। तो देखिए डायग्राम के थ्रू जरा समझिए, ये व्यू है जिसमें पिस्टन रिंग की आपको रेडियल थिकनेस दिखाई दे रही है। टीआर इज द रेडियल थिकनेस, है ना। एंड दिस इज अ सर्कुलर रिंग, इट इज कट एट द एंड्स। तो ये एक गैप किया हुआ है इसमें, जी आर इज द गैप, है ना। टी आर इज द रेडियल थिकनेस एंड बी आर इज द एक्साइल विड्थ। ओके, so this is the diameter of the so that it is given in here, and the formula for calculating the radial width. First we will calculate the radial tr value. So tr is given by d root 3 pw by sigma b. These all are empirical relations, and pw is the radial pressure, है ना। ring is pitted, so there is a pressure between the surface of the ring and the surface of the liner or the cylinder wall. So that pressure is pw. So pw is should be between 0.03 to 0.06 megapascal. So you can assume some value between this 0.0 to 0.06 for pw, and sigma b is the bending stress. So sigma b can be assumed between 90 to 120 megapascal for the cast iron, है ना। if you have assumed the material for the ring edge cast iron, है ना। So you will assume the material and use the value for sigma b. pw is fixed, it should be between 0.03 to 0.06, so you can assume 0.04. d is bore, so from here you can find the tr value, है ना। I am going to the board here to understand clearly it. So let I am new share whiteboard. तो अब यहाँ पे आप देखिएगा, हटा देते हैं। तो देखिए the cylinder wall is somewhat like this. So it is मैं कुछ रिंग बना लेता हूँ, है ना। इस तरह से कुछ रिंग्स होती हैं, इस तरह से मान लीजिए, है ना। So let this is the 1 2 3 4, है ना। So this is the first ring, this is the second ring, this is the third ring, this is the fourth ring, है ना। How many rings are in my figure? There are four rings, है ना। Similarly on this side it will also be like this. This is the this is the first ring, this is the second ring, this is the third ring, this is the fourth ring, and like this. Okay, and this is let some thickness. इसको मिटा देता हूँ, this, and this is the thickness. Okay, so in this part, this portion from here to here, this portion is known as top land. This portion is known as top land of the piston. So it is the portion from first ring से just ऊपर वाला जो portion है, that is top land, right? Now this value, this thickness, you can say this thickness, this value is axial thickness, है ना। This is the axis of the piston, so this is known as axial thickness. So axial thickness is represented by B1. So this value is B1, है ना। This is B1, this is B1, this is B1. तो ग्रुप का जो थिकनेस है वो B1 है ना। ग्रुप को देखेंगे आप। So let this is the first group. So first group कितना अंदर जा रहा है, that is TR. फर्स्ट ग्रुप कितना अंदर जा रहा है, दैट इज TR. तो TR आपका हुआ ग्रुप जितना अंदर जा रहा है, मतलब यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है ये तो आपका TR है ना। TR रिंग कितनी डीप में जा रही है अंदर, दैट इज TR, रेडियल थिकनेस ऑफ द रिंग। और रिंग ने कितना हाइट कवर किया हुआ है ना,
from here to here, this height, how much height the ring has covered, that is BR. So TR and BR. So TR is clear, BR is clear. TR is radial width and BR is the axial width. TR and BR. And now this is the first group. This is the first group, and this is the second group. This is the third group. So this is one group, this is another group. The distance between two groups, the distance between two groups is known as B1. तो मैंने आपको कई सारे पैरामीटर बताए, एक तो TR बताया, एक BR बताया, एक B1 बताया, और जो टॉप लेंथ है उसको मैं नाम दे रहा हूं B0. तो एक पैरामीटर मैंने आपको B0 भी बता दिया. ठीक है, तो अब इसको जरा सा मैं हल्का सा क्लियर कर देता हूं. ये चारों पैरामीटर्स को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि डिजाइन ऑफ पिस्टन रिंग्स में हमको ये सब निकालना ही पड़ेगा. तो इसके लिए अब मान लीजिए मैं इसको दोबारा से यहाँ बना लेता हूँ. लेट दिस इज माय फर्स्ट रिंग, सेकंड रिंग, थर्ड रिंग, फोर्थ रिंग. तो अब जरा सा फिर से देखते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या कहलाएगा? दिस डिस्टेंस इज BR. दिस डिस्टेंस इज BR. और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा? दिस इज B1. और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा? B0. करेक्ट. एंड लेट Z इज द नंबर ऑफ रिंग्स. Z is the number of rings. So length of the piston. So from here to here, it is the total length of the piston. So this is LP. LP is the length of the piston. So if I want to find the length of the piston, then how will I will find the length of piston is given by B0 plus BR. How many times BR? Let Z is the number of rings. So BR is the depth, BR is the height of one ring. So number of the rings are Z. So the total height is Z into BR. Total height is Z into BR. ध्यान से समझिएगा मैं लेंथ ऑफ द पिस्टन कैसे निकाल रहा हूँ. इट इज द समेशन ऑफ टॉप लेंथ प्लस Z times BR. BR Z times. Now B1 how many times? This is B1, then again B1, then again B1, है ना. देखो B1 को मैं जरा सा मार्क कर देता हूँ कि B1 कौन कौन सा है. This is B1, this is B1. Z minus 1. हाँ, so it is plus Z minus 1 multiplied by B1, है ना. और इसके बाद जो लास्ट रिंग है, this is the last ring. From last ring to open end of the piston, this is the open end. So this length is known as LS. LS is the length of the skirt. LS is the length of the skirt. Correct. So plus LS. ये फॉर्मूला याद रखिएगा. This is very important to calculate the length of the piston. It is the summation of B0 plus ZBR plus Z minus 1 into B1 plus LS. करेक्ट. चलिए वापस चलते हैं हम अपनी फाइल पर. सो आई एम गोइंग टू माय फाइल नाउ. व्हाइट बोर्ड को मैंने बंद कर दिया. शेयर स्क्रीन, फुल डिजाइन ऑफ द पिस्टन. तो TR is calculated by this formula, and BR is, when TR is available, then BR can be found by 0.75 to 1 TR, and there is again limitation for the BR. It is D by 10Z. D is bore diameter, Z is the number of rings. So higher of these two values will be accepted for the BR, and BR will be calculated by two formulas, and higher value we will accept for BR. So BR is also available. Width of the top length is again empirical, 0.75 to 1 BR. When BR is available, then B1 is available. है ना. हर चीज आपस में इंटर रिलेटेड है ना. मेन चीज है कि हम TR फाइंड करें,
On the basis of TR we can find BR, on the basis of BR we can find B1, and B0 can be found on the basis of thickness of the piston head, है ना? So this is all clear. The gap between the rings, है ना, gap between the rings. तो ये जो gap है, ये गैप हम क्यों प्रोवाइड करते हैं? ये GR जो गैप है ये इसलिए प्रोवाइड करता है, किया जाता है कि व्हेन gases are burnt, so there is a high temperature generated. Due to that high temperature, the piston wall may expand. The piston wall may expand. So when the piston wall will expand, then the ring will do some necessary action for that. So to reduce the thermal expansion, this gap is provided over there. So the gap between the free rings should be sufficient such that under the working conditions at highest temperature, the ends should not touch each other. तो गैप कम से कम इतना होना चाहिए कि हाईएस्ट टेम्परेचर पर वो आपस में एंड्स एक दूसरे को अटैच ना करें. तो उसके लिए जो वैल्यू है दैट इज 3 to 4 TR, है ना, एंड TR इज अवेलेबल इनिशियली. तो TR का करीब 3 to 4 टाइम्स होना चाहिए. तो दिस वैल्यू TR रेडियल थिकनेस, इसका करीब 3 टाइम्स या 4 टाइम्स गैप होना चाहिए इन द डिजाइन ऑफ द पिस्टन रिंग. सो नाउ द डिजाइन ऑफ द पिस्टन रिंग इज कंप्लीट, है ना. पिस्टन रिंग थोड़ा लंबा है, काफी वैल्यू निकालनी पड़ती है. TR निकालना पड़ेगा, BR निकालना पड़ेगा, B1 निकालना पड़ेगा, B0 निकालना पड़ेगा, गैप निकालना पड़ेगा, है ना. अभी न्यूमेरिकल करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा. तो पिस्टन रिंग इज नाउ कंप्लीट. अब आते हैं पिस्टन स्कर्ट. पिस्टन स्कर्ट जो है ये वो वाला पार्ट है जो पिस्टन रिंग से ओपन एंड की तरफ का जो लेंथ है दैट इज पिस्टन स्कर्ट. बॉटम पार्ट है ये पिस्टन का. तो इस बॉटम पार्ट पे क्या होता है, ये बॉटम पार्ट में कौन कौन से स्ट्रेस आते हैं उसको जरा सा हम समझ लेते हैं. व्हाइट बोर्ड के थ्रू हम इसको समझते हैं जरा. लेट आई एम टेकिंग द व्हाइट बोर्ड. इसको क्लियर कर देते हैं. सो इट इज क्लियर नाउ. तो देखिए हमारे पास ये आपका सिलेंडर है. सिलेंडर के अंदर ये पिस्टन है. पिस्टन से कनेक्टिंग रॉड अटैच है ना. तो अब ये कनेक्टिंग रॉड की जब मूवमेंट होती है तो कनेक्टिंग रॉड के 2 पॉइंट है, एक तो A पॉइंट, एक B पॉइंट. तो जो A पॉइंट है वो तो मूवमेंट करता है कैसी, स्ट्रेट मूवमेंट करता है ना. और जो B पॉइंट है वो कैसी मूवमेंट करता है, वो सर्कुलर मूवमेंट करता है. और A और B के बीच में बहुत सारे पॉइंट हैं, C पॉइंट, D पॉइंट, E पॉइंट. ये सारे पॉइंट्स आपस में इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूवमेंट करते हैं. ये इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूवमेंट करते हैं. तो ये सर्कुलर मूवमेंट, ये सर्कुलर मूवमेंट, ये स्ट्रेट मूवमेंट, बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं कनेक्टिंग रॉड पर वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूवमेंट करते हैं. तो ड्यू टू दिस इलिप्टिकल ऑर्बिट्स देयर इज ऑलवेज ए साइड थ्रस्ट ऑन द सरफेस ऑफ द पिस्टन स्कर्ट. ये पिस्टन स्कर्ट है बॉटम पार्ट. पिस्टन मूव करेगा तो ये जो पिस्टन स्कर्ट है, दिस पिस्टन स्कर्ट, दिस इज द स्कर्ट. सो दिस स्कर्ट इज अंडर साइड थ्रस्ट. इस स्कर्ट के ऊपर साइड थ्रस्ट आता है ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द कनेक्टिंग रॉड, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द कनेक्टिंग रॉड. तो अब हम क्या करते हैं, डिजाइन पर्पस के लिए कितना साइड थ्रस्ट आता है इसको कैसे पता करें. तो जितना मैक्सिमम फोर्स होता है गैसेस का, अब गैसेस का मैक्सिमम फोर्स कैसे निकलता है, एरिया मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम प्रेशर. सो π/4d² इज द एरिया, d इज द बोर डायमीटर, है ना. पिस्टन का डायमीटर, बोर का डायमीटर बराबर मान लिए जाते हैं. हालांकि इन दोनों के बीच में थोड़ा पिस्टन डायमीटर इज ऑलवेज लेस देन द सिलेंडर डायमीटर, है ना. कुछ क्लियरेंस होता है. मान लीजिए पिस्टन की वॉल है और ये सिलेंडर की वॉल है, तो सिलेंडर और पिस्टन के बीच में कुछ क्लियरेंस होता है ना. ये क्लियरेंस प्रोवाइड करना क्यों जरूरी है, यदि ये क्लियरेंस की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी तो अंडर वर्किंग कंडीशंस दिस वॉल में वियर आउट दिस वॉल, ये आपस में एक दूसरे को फ्रिक्शन करेंगे और डिस्टॉर्शन भी हो सकता है इन सरफेसेस के बीच में. सो सम क्लियरेंस, पिस्टन क्लियरेंस इज ऑलवेज प्रोवाइडेड. और यदि पिस्टन क्लियरेंस की वैल्यू भी यदि बहुत ज्यादा हो गई तो पिस्टन स्लैप करता है, मतलब नॉइस होने लगती है. और यदि पिस्टन क्लियरेंस की वैल्यू काफी कम हो गई तो वो आपस में फ्रिक्शन की वजह से वियर आउट जल्दी होते हैं. तो ये क्लियरेंस जो है ये करीब करीब 0.005 टाइम्स बोर डायमीटर रखा जाता है ना. तो यदि ये D है
तो क्लियरेंस की वैल्यू 0.005 डी होती है। लेकिन फॉर कैलकुलेशन पर्पस, क्योंकि पिस्टन के डायमीटर में और सिलेंडर के डायमीटर में कितना फर्क है, केवल 0.005 डी का फर्क होता है, क्लियरेंस के बराबर फर्क होता है, तो उसको हम नजरअंदाज कर देते हैं। फॉर द कैलकुलेशन पर्पस वी टेक द डायमीटर ऑफ द पिस्टन एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंडर सेम, दैट इज कैपिटल डी। So area is pi by 4 d square multiplied by p max. This is the force. This is the total maximum force. अब इस फोर्स का कितना पार्ट साइड थ्रस्ट में कन्वर्ट होता है, तो इस फोर्स का हम ये मान लेते हैं डिजाइन पर्पस के लिए कि करीब करीब 10% पार्ट जो है वो साइड थ्रस्ट में यूज होता है। तो इसमें 10% होने से कितने का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 0.1 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो जो साइड थ्रस्ट की वैल्यू है वो हो गई 0.1 मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 4 डी स्क्वायर पी मैक्स। दिस इज द साइड थ्रस्ट। ये क्या हो गया, साइड थ्रस्ट हमने निकाल लिया। अब इस साइड थ्रस्ट को हमारा स्कर्ट जो है, पिस्टन का जो बॉटम पार्ट है, लेट दिस इज द बॉटम पार्ट ऑफ द पिस्टन, सो इट इज स्कर्ट। तो अब स्कर्ट का यदि हम क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लें, साइड थ्रस्ट ऐसे लग रहा है, तो हम इसका यदि क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लें, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसका परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया ले लें, तो हमें क्या मिलेगा, एक तो इसकी लेंथ मिलेगी, है ना, लेंथ मिलेगी, और हमको क्या मिलने वाला है, इसका डायमीटर मिलने वाला है। तो LS into D will be the area. LS into D will be the area for the side thrust LD, है ना। किसी भी सिलेंडर को, पिस्टन कैसा है, एक सिलेंडर की तरह, तो यदि हम सिलेंडर को वर्टिकली कट कर देते हैं, तो जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो क्या आएगा, LD आएगा। हम बियरिंग को भी कट करते थे, रेडियल लोड आता था, तो एरिया क्या होता था, LD होता था। तो उसी तरह से यहाँ पर एरिया क्या हो गया, LD, है ना। L की जगह मैंने LS लिया हुआ है। So LS is the length of the skirt multiplied by diameter, so it is area. And due to this side thrust, इसमें क्या जनरेट होता है, प्रेशर। So bearing pressure is let PB. Bearing pressure is let PBS. तो फॉर द इक्विलिब्रियम पर्पस ये साइड थ्रस्ट और ये हमारा स्कर्ट कितना सस्टेन कर सकता है, देखो ध्यान से, ये वाली जो वैल्यू है ये तो साइड थ्रस्ट है, मैक्सिमम ये साइड थ्रस्ट इतना आ रहा है स्कर्ट के ऊपर, और ये साइड थ्रस्ट स्कर्ट का मटेरियल कितना बियर कर सकता है। तो फॉर द इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ व्यू दे मस्ट बी इक्वल। तो इसको इक्वल करने के बाद हम क्या करते हैं, यहां से एक अननोन पैरामीटर है LS, लेंथ ऑफ द स्कर्ट निकाल लेते हैं। तो जैसे ही लेंथ ऑफ द स्कर्ट हम फाइंड करते हैं, तो डिजाइन ऑफ द स्कर्ट कंप्लीट हो जाती है। स्कर्ट की डिजाइन का मतलब है लेंथ ऑफ द स्कर्ट हमें फाइंड करना है, और लेंथ ऑफ द स्कर्ट का ही यूज लेंथ ऑफ द पिस्टन में भी होता है। ठीक है, तो अब मैं वापस चल रहा हूं फाइल के लिए। तो डिजाइन ऑफ द पिस्टन स्कर्ट अब आपको यहां से क्लियर हो जाएगा। तो मैंने क्या किया है, फॉर्मूला बना दिया, देखिए सीधे सीधे ये फॉर्मूला बन गया आपका 0.1 इंटू पाई बाय 4 डी स्क्वायर पी मैक्स, है ना। ये फॉर्मूला आ गया इक्वल टू LS इंटू DP, और यहाँ से हम LS फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए बोर का डायमीटर तो क्वेश्चन में दिया होता है, PV क्या है यहाँ पर, P max is the maximum pressure and capital D is the bore diameter of the cylinder, है ना। जो bore diameter of the cylinder और diameter of the piston कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि उनमें केवल क्लियरेंस का फर्क है ना। ये bore diameter of the cylinder है जनरली, and this is the, और सर PV क्या है, PV is the bearing pressure between the skirt surface, स्कर्ट की जो सरफेस है, ठीक है, और स्कर्ट की सरफेस और सिलेंडर लाइनर की सरफेस, उन दोनों के बीच में जो, सर ये गिवन होगा PV? PV गिवन नहीं होगा, PV के लिए एक गाइडलाइंस होती है। तो PV के लिए देखो गाइडलाइंस मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। PV के लिए गाइडलाइंस होती है कि आप PV कितना अज्यूम कर सकते हैं, है ना। तो PV के लिए कुछ गाइडलाइंस हैं, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। PV कैन बी अज्यूम्ड 0.3 मेगापास्कल फॉर द लो स्पीड इंजन्स। लो स्पीड इंजन्स के लिए गाइडलाइन है कि PV 0.3 से ज्यादा ना हो, और 0.5 मेगापास्कल फॉर द हाई स्पीड इंजन। ये फाइल भी मैं आपको भेज दूंगा, है ना, इससे पहले मैंने सारी फाइल आपको भेजी हुई है। सो PV जो है हम 0.3 से 0.5 के बीच में अज्यूम कर लेंगे, है ना। सो PV इज नॉट ए प्रॉब्लम, सो वी कैन फाइंड LS फ्रॉम दिस फॉर्मूला। सो लेंथ ऑफ द स्कर्ट इज नाउ कंप्लीट। नाउ लेंथ ऑफ द पिस्टन। लेंथ ऑफ द पिस्टन भी मैं बोर्ड से समझा चुका हूं, इट इज द समेशन ऑफ द टॉप लेंथ
width of the top land plus total width of the piston rings, that is ZBR, total width of the length Z minus 1 B1, length of the piston, सबको जोड़ देना है, लेंथ ऑफ द पिस्टन निकल जाएगी। अगला पॉइंट, रिप्स। रिप्स की डिजाइन बहुत सरल है। रिप्स क्यों लगाते हैं? सपोर्ट के लिए लगाते हैं। देखो पिस्टन एक सिलेंड्रिकल सरफेस है और अंदर से पिस्टन के अंदर क्या लगी रहती है? पिस्टन पिन लगी रहती है जहां पर कनेक्टिंग रॉड अटैच होती है। बाकी सारा जो सरफेस है, जो पोर्शन है, वो होलो होता है। तो होलो होने की वजह से उसे एक्स्ट्रा सपोर्ट देने के लिए हम रिप्स प्रोवाइड करते हैं। तो ये रिप्स हमको फिर मल्टीपर्पज हो जाती हैं। एक तो ये सपोर्ट भी देती हैं और साथ में हमारी हीट ट्रांसफर में भी हेल्प करती हैं। तो ये रिप्स हम जो है अज्यूम कर सकते हैं कि हमें कितनी रिप लगानी है ना? 4 लगा सकते हैं, 6 लगा सकते हैं, अज्यूम कर सकते हैं। तो जनरली 4 या 6 अज्यूम कर लेते हैं। और थिकनेस ऑफ द रिप बहुत ही एक सिंपल फॉर्मूला है कि 1/3 to 1/2 TPH, मतलब थिकनेस ऑफ द पिस्टन हेड यदि पता है तो रिप की थिकनेस अपने आप निकल जाएगी। तो जस्ट एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज करना है रिप की डिजाइन में, 1/3 to 1/2 टाइम्स TPH, है ना? तो नेक्स्ट पॉइंट इज पिस्टन पिन। पिस्टन पिन इज इंपॉर्टेंट। पिस्टन पिन के ऊपर क्या होता है? शियर स्ट्रेस भी आते हैं, बेंडिंग स्ट्रेस भी आते हैं, क्योंकि जब फोर्स लगता है पिस्टन पिन पर तो उसमें बेंडिंग भी होती है, शेयरिंग भी होती है, बियरिंग प्रेशर भी आता है ना? पिन जो है क्या होती है? सर्कुलर होती है। थोड़ा सा पिन के बारे में बोर्ड से समझा देता हूँ कि पिन का क्या मैटर है, इसको क्लियर कर देते हैं। पिस्टन पिन पे बात चल रही है अब हमारी, है ना? पिस्टन पिन। तो देखिए ये हमारा पिस्टन है, ये पिस्टन। तो पिस्टन पिन की हेल्प से कनेक्टिंग रॉड अटैच होती है। मान लीजिए कनेक्टिंग रॉड है ना, कनेक्टिंग रॉड रोटेट होती रहती है, तो कभी तो ये स्ट्रेट पोर्शन में आई जाएगी, है ना? वो जो आप बोलते हैं टॉप डेड सेंटर, बॉटम डेड सेंटर। तो इस वक्त कनेक्टिंग इस पोजीशन में मान लेते हैं कि कनेक्टिंग रॉड का, अब ये जो पिन है, पिन में एक तो कनेक्टिंग रॉड का पार्ट रहता है, मतलब इतने हिस्से में तो ये कनेक्टिंग रॉड में फिट रहती है ना? इतने हिस्से में तो कनेक्टिंग रॉड में फिट रहती है और बाकी हिस्से में ये पिस्टन के साथ फिट रहती है। और ये पिस्टन पिन हो गई, मान लीजिए टोटल पिस्टन पिन है। तो पिस्टन पिन जनरली हम हॉलो बनाते हैं। हाँ जी, हम क्या बनाते हैं? हॉलो बनाते हैं। मतलब इसमें 2 डायमीटर होंगे पिस्टन पिन के। तो एक डायमीटर होगा आउटर डायमीटर और एक डायमीटर होगा इनर डायमीटर। हॉलो क्यों बनाते हैं? जिससे हमारा वेट कम हो जाए, पिस्टन पिन का वेट रिड्यूस हो जाए। तो इस पिन के ऊपर देखो, अब ये पिन कनेक्टिंग रॉड के साथ अटैच है, तो कनेक्टिंग रॉड का जो स्मॉल एंड है, ये वाला कनेक्टिंग रॉड का क्या कहलाता है? स्मॉल एंड कहलाता है। और जो दूसरा वाला एंड होता है वो बिग एंड होता है। तो स्मॉल एंड का जो बुश होगा, उस बुश के अंदर हमारी पिन इंसर्ट हो रही है। तो बुश की सरफेस और पिन की सरफेस, इन दोनों के सरफेस के बीच में बियरिंग प्रेशर एक्ट करता है ना? तो हमारी बियरिंग जो हमारी पिन है, तो वो बियरिंग प्रेशर की वजह से फेल हो सकती है। दूसरा, जब ये फोर्स आ रहा है तो फोर्स आने की वजह से इसमें इस क्रॉस सेक्शन पे शेयरिंग एक्शन होती है, इस क्रॉस सेक्शन पे भी शेयरिंग एक्शन होती है। तो यहाँ पे डबल शेयरिंग होती है ना? तो ये वाला एरिया क्या होगा? ये वाला एरिया क्या होगा? ये एरिया हो जाएगा π/4 DO स्क्वायर माइनस DI स्क्वायर, जहां पे DO क्या है? आउटर डायमीटर ऑफ द पिन, और DI क्या है? इनर डायमीटर ऑफ द पिन। तो ये पर्टिकुलर जो क्रॉस सेक्शन है, इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन की बात कर रहा हूं, तो इसका एरिया हो जाएगा π/4 DO स्क्वायर माइनस DI स्क्वायर। ऐसे ही दूसरे क्रॉस सेक्शन पे भी एरिया यही हो जाएगा। तो इसमें डबल शेयरिंग होती है। तो डबल शेयरिंग होने के लिए हम शियर स्ट्रेस को कैसे चेक कर सकते हैं? फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। शियर स्ट्रेस क्या होता है? सिंपली फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। अब फोर्स कैसे आ रहा है? ड्यू टू बर्निंग ऑफ द गैसेस। और फोर्स तो निकालना बड़ा आसान है, π/4 D स्क्वायर इंटू π/4 D स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय P मैक्स। इसकी हेल्प से तो हम फोर्स निकाल लेते हैं। तो फोर्स हमारे पास अवेलेबल है। अब एरिया चूंकि यहाँ पे डबल शेयरिंग हो रही है तो एरिया डबल लिया जाएगा, तो F/2A, है ना? और एरिया हम यहां से निकाल सकते हैं, है ना? π/4 DO स्क्वायर माइनस DI स्क्वायर। लेकिन एरिया जब ही निकलेगा जब हमको DO पता होगा और DI पता होगा, तभी तो एरिया निकलेगा। तो हम क्या करते हैं? पिन तीन चीजों की वजह से फेल होती है पिन जो है। तो जरा सा ऐसे मैं क्लियर करता हूं। अब तीन चीजें क्या क्या हैं? एक पिन फेल होती है 3 चीजों की वजह से। एक तो होती है बियरिंग प्रेशर की वजह से,
एक होती है फेल बियरिंग प्रेशर, दूसरी ये शियरिंग में भी फेल हो सकती शियरिंग एक्शन में, तीसरी ये बेंडिंग में भी फेल हो सकती है ना, बेंडिंग मूवमेंट आने से बेंडिंग मूवमेंट में फेल हो सकती है। तो अब हम क्या करें, हम अब पिन का डायमीटर क्या है डीओ, इनर डायमीटर क्या है डीआई। तो अब डीओ और डीआई को हम क्या करते हैं, हम जो कॉमन प्रोसीजर यूज करते हैं वो ये करते हैं कि बियरिंग प्रेशर की हेल्प से हम डीओ निकाल लेते हैं और डीआई निकाल लेते हैं। वंस डीओ एंड डीआई इज अवेलेबल वी कैन फाइंड द एरिया, एंड व्हेन एरिया इज अवेलेबल देन शियरिंग स्ट्रेस कैन बी चेक्ड, है ना। जो शियरिंग स्ट्रेस है वो निकाला जा सकता है। शियरिंग स्ट्रेस क्या होता है, F/2 है, डबल शेयरिंग की वजह से। तो जब एरिया पता लग गया, पहले यहां से डीओ एंड डीआई निकाला, फर्स्ट स्टेप से डीओ और डीआई निकाला हमने। डीओ और डीआई, अच्छा डीआई कैसे निकालोगे, डीओ तो निकल जाएगा, डीआई निकालने के लिए 0.6 डीओ फॉर्मूला यूज कर देते हैं। इन द इनर डायमीटर इज 60% ऑफ द आउटर डायमीटर। So when DO and DI is available, area is available, so shearing stress can be checked. So this tau must be less than the tau allowable. यदि induced shear stress allowable shear stress या permissible shear stress से कम है, in that case we can say that our pin is safe under the shearing phenomena or shearing action. तो shearing में चेक कर ले। ऐसी बेंडिंग, अब बेंडिंग कैसे चेक करोगे, तो बेंडिंग के लिए आपके पास जनरल फॉर्मूला है ही है कि बेंडिंग स्ट्रेस जो होता है सिग्मा बी, तो सिग्मा बी कैसे निकालते हैं, एम वाई डिवाइडेड बाई आई से निकालते हैं, है ना, एम वाई डिवाइडेड बाई आई से निकालते हैं सिग्मा बी। अब आई मतलब मोमेंट, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब पिन कैसी है, होलो है, पिन तो होलो है, एक डायमीटर डी आई है, एक डीओ है, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो क्या हो जाएगा, π/64 DO4 माइनस DI4। ये आपको बहुत पहले से पता है कि किसी हॉलो रॉड का जो एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो π/64 DO4 माइनस DI4 होता है। तो आई आप निकाल लेंगे, DO DI आपको पहले स्टेप से ही पता है। अब y क्या होता है, y होती है न्यूट्रल एक्सिस से, यानी ये न्यूट्रल एक्सिस है, तो न्यूट्रल एक्सिस से मैक्सिमम डिस्टेंस, तो मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी हो गई DO/2, क्योंकि इसका डायमीटर DO है। तो y की वैल्यू हम DO/2 यूज कर लेंगे, i की वैल्यू π/64 DO4 DI4। अब बचा बेंडिंग मोमेंट। अब बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालें, तो बेंडिंग मोमेंट के लिए आपको पता है कि मान लीजिए कि ये पिस्टन पिन है और इसके ऊपर ये फोर्स आ रहा है, और ये फोर्स गैस की बर्निंग की वजह से आ रहा है, ये F मैक्सिमम है, तो इस फोर्स को हम एज ए यूडीएल कंसीडर करते हैं। क्या करते हैं, एज ए यूडीएल, कि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड आ रहा है। तो आपको पता है कि जब किसी बीम पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड आता है तो उस केस में जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है वो होता है WL²/8। होता है कि नहीं होता है, आपने पढ़ा है पहले सॉम में कि जब यूडीएल के केस में जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है वो सेंटर पे लगता है और उसकी वैल्यू WL²/8 होती है। अब इसको मैं WL²/8 को ऐसे लिख सकता हूं, कैपिटल W डिवाइडेड बाई 8, ऐसे भी लिख सकता हूं, क्योंकि कैपिटल W क्या है, स्मॉल w टाइम्स L। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की इंटेंसिटी स्मॉल w होती है, तो w पूरी लेंथ L पे काम कर रहा है, तो टोटल फोर्स कितना हो गया, W इंटू L। तो ये W जो है वो टोटल फोर्स है। तो अब हमारे केस में टोटल फोर्स कितना है, W की जगह हम क्या लिख देंगे, F हमारा टोटल फोर्स है, और L मतलब लेंथ ऑफ द बीम। तो हमारे केस में अब लेंथ कितनी है बताइए, व्हाट इज दिस लेंथ, दिस इज द लेंथ ऑफ द पिस्टन पिन, दिस इज द लेंथ ऑफ द दिस। ये हमारा जो फोर्स है किसके अंदर लग रहा है, सिलेंडर के अंदर लग रहा है। तो ये वाली जो लेंथ है ये बेसिकली बोर डायमीटर के बराबर भी है, तो वी कैन से इट इज FD डिवाइडेड बाई 8। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए ये सिंपल सा फॉर्मूला आ जाता है, FD डिवाइड बाई 8। ठीक है, अब F क्या है, मैक्सिमम फोर्स, बड़े आराम से निकल जाएगा, π/4 D² इंटू P मैक्स, D बोर डायमीटर क्वेश्चन में दिया है, तो M बेंडिंग मोमेंट निकल गया। और जब बेंडिंग मोमेंट निकल गया तो फिर बेंडिंग स्ट्रेस निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिग्मा भी क्या है, My/I, M भी पता है, Y भी पता है, I भी पता है, तो सिग्मा भी आ जाएगा। अब ये जो सिग्मा भी आएगा, इंड्यूस्ड सिग्मा भी, इट शुड बी लेस देन द अलाउएबल और परमिसिबल सिग्मा भी, है ना। अब पिस्टन पिन का मटेरियल अज्यूम कर लेंगे, माना कि अलॉय स्टील है ना, जनरली स्टील की बनती है पिस्टन पिन, डक्टाइल मटेरियल की बनाते हैं, तो उसके लिए यदि अलाउएबल स्ट्रेस ज्यादा है
और हमारा स्ट्रेस कम आ रहा है फॉर्मूले से, देन हम वी कैन से दैट आवर पिन इज सेफ अंडर द बेंडिंग। तो पिन की बात मेरी हो गई। इस पर तीन तरह से, दो तरह से चेक लगता है, एक तरह से कैलकुलेशन होती है। वापस आ रहा हूं फाइल पर। तो पिस्टन पिन पर तीन तरह की एक्शन होती है, ठीक है। तो अब देखिए, जो फोर्स आ रहा है वो पाई बाय 4 डी स्क्वायर इंटू पी मैक्स है, मैक्सिमम फोर्स एक्टिंग ऑन द पिस्टन पिन। और इधर मैंने लिया राइट साइड में मैक्सिमम फोर्स द पिन कैन सस्टेन। अब पिन के कितना फोर्स सस्टेन कर सकती है, तो एरिया इंटू प्रेशर। अब एरिया क्या हो गया, L1 इज द लेंथ ऑफ द पिस्टन पिन और dp इज द डायमीटर ऑफ द पिस्टन पिन, और आप इसको DO भी लिख सकते हैं, आउटर डायमीटर ऑफ द पिस्टन पिन, है ना। DO और DP एक ही बात है। तो इस PB यहाँ पर है ना, PB अज्यूम कर लेंगे, मटेरियल पता है इसलिए। सो फ्रॉम दिस पोर्शन वी कैन फाइंड द L1, वी कैन फाइंड द डायमीटर DP। और देखो कुछ गाइडलाइंस दे रखी हैं परमिसिबल प्रेशर के लिए, कि यदि एल्युमिनियम अलॉय आपने अज्यूम किया है मटेरियल पिस्टन पिन के लिए, तो उस केस में पिस्टन पिन और जो कनेक्टिंग रॉड का बुश है, कनेक्टिंग रॉड के बुश का मटेरियल यदि आपने एल्युमिनियम अलॉय अज्यूम किया है, तो उस केस में ये प्रेशर लिमिट है। कास्ट आयरन अज्यूम किया तो ये प्रेशर लिमिट है। यदि ब्रॉन्ज बुश अज्यूम किया है तो ये प्रेशर लिमिट है। तो यू कैन अज्यूम एनी वैल्यू फ्रॉम द डाटा बुक। सो नाउ दिस इज चेक फॉर शियर। तो F बाई ए होता है, लेकिन एरिया मैंने 2 टाइम्स लिया है पाई बाय 4 DO इसको, क्योंकि यहाँ पे डबल शियर फिनोमेना हो रही है। सो इट इज जनरली F अपॉन ए। तो शियर चेक हो गया। अब जो भी शियर आया वो अलाउेबल शियर स्ट्रेस से यदि कम है ना, टॉ इज लेस देन टॉ अलाउेबल, देन आवर पिस्टन पिन इज सेफ अंडर द शियर। उसी तरह से बेंडिंग के लिए चेक कर लेंगे। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट FD बाई 8 होता है। बेंडिंग स्ट्रेस निकाल लेंगे। बेंडिंग स्ट्रेस निकालने के बाद यदि डायरेक्ट जो बेंडिंग स्ट्रेस आया वो सिग्मा अलाउेबल से कम है, तो उस केस में हमारी पिन सेफ है अंडर बेंडिंग, ठीक है। तो पिस्टन पिन का डिजाइन भी कंप्लीट हो गया। देखो अब थोड़ा सा रिवाइज कर लें हमने क्या क्या किया। सबसे पहले हमने पिस्टन हेड की थिकनेस निकाली, तो उसके बाद हमने पिस्टन बैरल की थिकनेस निकाली, उसके बाद हम रिंग पर आ गए। रिंग के अंदर हमने TR मतलब रेडियल विड्थ या रेडियल थिकनेस ऑफ द रिंग निकाला। फिर हमने एक्साइल थिकनेस निकाली रिंग की, है ना। उसके बाद हमने दो ग्रुप्स के बीच में जो जो लैंड है उसकी थिकनेस निकाली, टॉप लैंड की थिकनेस निकाली। फिर हमने स्कर्ट की लेंथ निकाली, और स्कर्ट की लेंथ के बाद फिर हमने लेंथ ऑफ पिस्टन निकाली, और लेंथ ऑफ पिस्टन निकालने के बाद हम आ गए पिस्टन पिन पर। पिस्टन पिन पे हमने उसका आउटर डायमीटर निकाला, फिर हमने इनर डायमीटर निकाला, और उसके बाद हमने पिस्टन पिन को चेक किया अंडर शियर अंडर बेंडिंग। इतना काम हम कर चुके हैं। पिस्टन की डिजाइन काफी इंपॉर्टेंट और लेंदी है ना। तो बहुत ध्यान से समझने हैं सारे पॉइंट्स, फाइल में आपको भेज दूंगा। पिस्टन क्लियरेंस लास्ट पॉइंट है, तो पिस्टन क्लियरेंस होना चाहिए। यदि ज्यादा क्लियरेंस दे दोगे तो पिस्टन स्लैप हो जाएगा, कम क्लियरेंस दोगे तो पिस्टन सीज हो सकता है ना। सो मेनी प्रॉब्लम्स। तो ये रिकमेंडेशन है क्लियरेंस के लिए 0.005 डी। यदि नहीं दिया हुआ है तो आप अज्यूम कर सकते हैं 0.005 डी, है ना। तो अब हम आ जाते हैं न्यूमेरिकल पर, है ना। तो अब इसमें अप्लाई करेंगे जो नॉलेज अभी हमने गैदर की है, उस नॉलेज को अप्लाई करेंगे इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में। तो अब देखिए, डिजाइनिंग कास्ट आयरन पिस्टन, हमारे पास टाइम है अभी 10 मिनट, है ना। 10 मिनट में इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर देंगे। सो आवर पिस्टन डिजाइन विल बी कंप्लीट। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट द डिजाइन ऑफ द कनेक्टिंग रॉड, ठीक है। उसके बाद क्रैंकशाफ्ट। बस दो ही टॉपिक और रह गए हैं, डिजाइन ऑफ द कनेक्टिंग रॉड एंड डिजाइन ऑफ द क्रैंकशाफ्ट। कम से कम 4 क्लास लगेंगी, 2 क्लास कनेक्टिंग रॉड में और 2 क्रैंकशाफ्ट में। ओके, तो इस न्यूमेरिकल को आप ध्यान से समझिए। डिजाइन ए कास्ट आयरन पिस्टन फॉर ए सिंगल एक्टिंग 4 स्ट्रोक इंजन। अब 4 स्ट्रोक है तो जो आरपीएम होगी वो आधी हो जाएगी, पहले बता चुका हूं, विद द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन। सिलेंडर बोर दिया है, स्ट्रोक दिया है, स्पीड दी हुई है, ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर दिया है, मैक्सिमम गैस प्रेशर दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए फ्यूल कंजप्शन कितना दे रखा है, 0.227 kg पर किलोवाट आवर। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि पर आवर दिया हुआ है तो इसे पर सेकंड में चेंज कर लेना। पर आवर दिया है तो पर सेकंड में चेंज करना जरूरी है। तो इसी वजह से हमने इस BSFC को यहाँ पे चेंज किया है 0.227 डिवाइडेड बाई 3600। ये देखिए, तो जब हमने इसको चेंज किया 3600 से डिवाइड किया है, क्योंकि 1 आवर में 3600 है, दैट्स व्हाई वी हैव डिवाइडेड इट। सो इसकी वैल्यू 6.305 10⁻⁵ kg पर किलोवाट सेकंड आ गई।
है ना। ये वही डाटा है जो क्वेश्चन में दे रखा है। कैपिटल N 2200 दे रखी है, तो N/2 कर दिया है क्योंकि ये 4 स्ट्रोक इंजन है। तो नंबर ऑफ जो पावर स्ट्रोक मिलेंगे वो हमको आधे मिलेंगे, 2200 का आधा 1100 कर दिया है। तो एक हमने BSFC में 3600 का भाग दिया है, एक N को आधा किया है। ये दो बातें इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं पहले डिजाइन का पहला स्टेप। पहला स्टेप क्या है, थिकनेस ऑफ द पिस्टन हेड निकालते हैं। अब पिस्टन हेड निकालने के दो क्राइटेरिया होते हैं, एक स्ट्रेंथ क्राइटेरिया और एक होता है हीट डिसिपेशन क्राइटेरिया। तो जब हमने स्ट्रेंथ क्राइटेरिया वाला फॉर्मूला लगाया 0.433 डी रूट पी मैक्स बाई सिग्मा अलोएबल, तो डी कितना है 100, क्वेश्चन में दिया हुआ है। डी कितना है 100, इट इज गिवन इन क्वेश्चन। ठीक है, पी मैक्स 5, इट इज गिवन इन क्वेश्चन। अब सिग्मा अलोएबल क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो आप क्या करेंगे, अलोएबल क्या होता है, मटेरियल पर डिपेंड करता है। मटेरियल एज्यूम करिए, मान लीजिए कास्ट आयरन पिस्टन एज्यूम कर लिया, तो अज्यूमिंग कास्ट आयरन पिस्टन, आपका जो अलोएबल वैल्यू होती है वो 35 से 40 के बीच में आप एज्यूम कर सकते हैं। तो मैंने 37.5 मेगापास्कल एज्यूम कर लिया है। अजम्पशन बेस्ड है क्वेश्चन। अजम्पशन लेने से आप बिल्कुल भी वो ना करें, अजम्पशन कहाँ लेना है, कहाँ लॉजिकल है, वो भी आपको इस क्वेश्चन से क्लियर होगा। तो सिग्मा अलोएबल यहाँ पर हमने मटेरियल एज्यूम करके ले लिया है और इसको सॉल्व किया। सॉल्व करके 15.81 आया, तो 16 mm आ गई थिकनेस पिस्टन हेड की। अब दूसरे क्राइटेरिया पे पहुंचे। अब दूसरा क्राइटेरिया क्या है, पिस्टन हेड की थिकनेस बाय हीट डिसिपेशन क्राइटेरिया। तो उसके लिए ये फॉर्मूला है। अब x क्या है, पार्ट हाउ मच पार्ट ऑफ द हीट इज अब्सॉर्ब्ड बाय द पिस्टन, तो हमने 5% एज्यूम किया। ये भी अजम्पशन है, 5%, 0.05। BSFC क्या होती है, ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन। तो ये क्वेश्चन में दी हुई थी, लेकिन आवर में दी हुई थी, हमने पर सेकंड में चेंज कर लिया। ये देखिए हमने kg पर किलोवाट सेकंड में चेंज कर लिया, तो वो चेंज वाली वैल्यू यूज कर ली। उसके बाद ब्रेक पावर चाहिए। ब्रेक पावर का फॉर्मूला होता है PBM LAN by 60,000, ये हम पहले ही बता चुके हैं। अब देखिए PBM क्वेश्चन में दे रखा है 0.65, एरिया क्या होता है π/4 d स्क्वायर, तो π/4 100 स्क्वायर हो गया। ठीक है, L हमारा कितना है 120 है। ठीक है, और N की वैल्यू कितनी है 1100। वैसे 2200 RPM दिया, लेकिन पावर स्ट्रोक 1100 मिलेंगे, आधे कर दिए थे हमने, डिवाइड बाय ये, तो इसको सॉल्व किया तो 11,231 वॉट आ गई, है ना। लेकिन हमको फॉर्मूले में किलोवाट में यूज करनी है। किलोवाट में क्यों यूज करनी है, क्योंकि BSFC जो है वो हमने किलोवाट में लिया है, तो यूनिट कॉम्पिटिबिलिटी के लिए इसे किलोवाट में कन्वर्ट किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, किलोवाट में कन्वर्ट नहीं करते हैं लोग एग्जाम में। सो यहाँ पर BP को किलोवाट में कन्वर्ट किया गया और BP को किलोवाट में यूज किया गया है, तो इट इज 11.231। इसके बाद हायर कैलोरीफिक वैल्यू। अब हायर कैलोरीफिक वैल्यू पेट्रोल डीजल के लिए 42,000 किलो जूल होती है, तो ये मैंने नीचे अज्यूम किया है कि 42,000 किलो जूल पर केजी, तो ये हो गई 42 इंटू 10⁶ जूल पर केजी, है ना। इसको जूल में कन्वर्ट कर लिया, तो ये 42 इंटू 10⁶ हो गई। चारों पैरामीटर क्लियर। नीचे 4πk। अब K क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी। अब आपने कास्ट आयरन का मटेरियल, कास्ट आयरन का वो लिया है, मटेरियल अज्यूम किया है कास्ट आयरन का पिस्टन, तो कास्ट आयरन के लिए थर्मल कंडक्टिविटी डाटा बुक से मिल जाएगी। तो कास्ट आयरन के लिए जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो 46.5 होती है। ठीक है, कास्ट आयरन के लिए थर्मल कंडक्टिविटी कितनी होती है 46.5। यदि मैंने एल्युमिनियम अज्यूम किया होता मान लीजिए, तो थर्मल कंडक्टिविटी कास्ट आयरन के रेस्पेक्ट में 3 टाइम्स हो जाती है ना। एल्युमिनियम की एल्युमिनियम की थर्मल कंडक्टिविटी कास्ट आयरन के रेस्पेक्ट में 3 टाइम्स है, तो 46 का 3 गुना आप कर दें तो करीब करीब मैं समझता हूँ 140 या 142 के आसपास आ जाएगी, है ना, थर्मल कंडक्टिविटी। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन में कास्ट आयरन अज्यूम किया, इसलिए हमने K 46.5 ले लिया है। अब आता है डेल्टा टी। डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस है। तो ये प्रैक्टिकली पाया गया है कि कास्ट आयरन पिस्टन के केस में जो डिफरेंस होता है टेम्परेचर का, कहाँ का डिफरेंस, एक तो पिस्टन के सेंटर का और एक पिस्टन की बाहरी एज का, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 220 होता है। और यही चीज एल्युमिनियम के केस में आधी होती है, यानी 110 या 111 ली जाती है ना। तो देखो के एल्युमिनियम के केस में K 3 गुना हो जाएगा, डेल्टा टी आधा हो जाएगा। ठीक है, तो ये जब वैल्यूज रखने के बाद जब मैंने इसे सॉल्व किया तो मुझे 11.57 मिला। अब देखो एक क्राइटेरिया से तो मिला 11.57 और एक क्राइटेरिया से मिला 15.81। सो विच इज द डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया। सो लार्जर ऑफ द टू वैल्यूज, इन दोनों में जो वैल्यू लार्जर है वही डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया है। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ क्राइटेरिया इज द डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया, है ना। हीट डिसिपेशन इज नॉट द डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया हियर। कहीं कहीं पर यदि ये वैल्यू ज्यादा आती है तो उस केस में ही ये वाला क्राइटेरिया डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया हो जाएगा।
तो दोनों में से लार्जर वैल्यू ले ली तो 16 mm आ गई, एक पॉइंट खत्म हो गया। पिस्टन की थिकनेस हमने निकाल दी। अब पिस्टन बैरल की थिकनेस क्या होती है, पिस्टन हेड के बराबर ही होती है, तो ये 16 mm आ गया तो ये भी 16 mm आ गया, नो प्रॉब्लम। अब थर्ड आते हैं पिस्टन रिंग पर। पिस्टन रिंग में क्या होता है, टीआर। टीआर मतलब रेडियल थिकनेस, है ना, रेडियल थिकनेस। रेडियल थिकनेस के लिए क्या फॉर्मूला है, d√3pw बाई सिग्मा अलॉयबल। डी 100 दिया हुआ है, 3pw जो होता है वो 0.03 से 0.05 के बीच में अज्यूम करते हैं, तो 0.04 हमने अज्यूम कर लिया है पीडब्ल्यू को। और सिग्मा अलॉयबल हमने कितना अज्यूम कर लिया है, क्योंकि ये हमने अज्यूम कर लिया है 100, है ना, बेंडिंग स्ट्रेस जो है वो 100 अज्यूम कर लिया है, क्योंकि रिंग जो है वो भी अंडर बेंडिंग आ जाती है, तो इसे 100 अज्यूम कर लिया। बस सॉल्व किया तो 3.4 यानी 3.5 mm हो गई राउंड ऑफ होके, तो टीआर निकल गया। अब टीआर के बेस पे बीआर निकल जाएगा। बीआर क्या होता है, 0.7521 टाइम्स टीआर, तो 0.75 इंटू 3.5 किया तो 2.625 से 3.5 के बीच में, इन दोनों के बीच में हमने 3 mm अज्यूम कर लिया, तो बीआर भी आ गया। अब बीआर आने के बाद बीआर के अब नंबर ऑफ रिंग्स चाहिए, तो बीआर बराबर क्या होता है, डी बाई टेंजेंट, है ना, डी बाई टेंजेंट। तो यहां से हमने डी पता है, बीआर पता है, तो हमने जेड निकाल लिया 3.33। अब नंबर ऑफ द रिंग्स पॉइंट में तो होगी नहीं, तो 3.33 की जगह हमने उसे राउंड ऑफ कर दिया 4, कि हमारी जो रिंग है वो 4 रिंग है, हमें कितनी रिंग की जरूरत है ना। यदि z इक्वल टू हमारा 7 आ रहा होता है, इसका मतलब हमें 7 रिंगों की जरूरत है, तो हमें एक आइडिया लग गया कि हाउ मच रिंग्स आर रिक्वायर्ड हियर, तो 4 रिंग चाहिए। अब इन 4 रिंगों में से आपको बंटवारा करना है, कुछ रिंग्स होंगी कंप्रेशन रिंग होंगी, कुछ ऑयल रिंग होंगी। तो 4 में से आपने 3 रिंग तो हमने ये जूम कर लिए कि वो कंप्रेशन रिंग है और एक ऑयल रिंग है, आप 2 भी जूम कर सकते हैं, बट जनरली ऑयल रिंग कम रखी जाती है, तो 2 करने से बराबर हो जाएंगी, इसके इसलिए बेटर है कि हम 3 कंप्रेशन रिंग लें और एक ऑयल रिंग लें। यदि हमारी 7 होती टोटल, तो 7 में से क्या हम ये कर सकते थे कि 5 मान लेते कंप्रेशन रिंग और 2 मान लेते ऑयल रिंग। तो ऑयल रिंग हमेशा कम अज्यूम करिए और कंप्रेशन रिंग ज्यादा अज्यूम करिए। तो ये हमारा z इक्वल टू 4 आ गया, 4 का बंटवारा कर दिया हमने 3 और 1 में, ये खुद ही किया हमने बंटवारा, क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन में ये भी नहीं दिया कि कितनी रिंग लगानी है, हमने ही निकाला है कि 4 रिंगों की जरूरत है और उसमें 3 कंप्रेशन रिंग होंगी और एक आपकी ऑयल रिंग होगी। अब देखिए रिंग वाला काम हो गया। अब विड्थ ऑफ द लैंड निकाला है, तो विड्थ ऑफ द लैंड बीआर पे डिपेंड है, बीआर की वैल्यू 3 mm है, ये पहले कैलकुलेट कर रखे हैं, बीआर बराबर 3, तो हमने b1 निकाल लिया, b1 विड्थ ऑफ द लैंड, तो ये हमारा मल्टीप्लाई करके 2.5 mm आ गया। फिर हमने क्या किया, विड्थ ऑफ द टॉप लैंड निकाला, विड्थ ऑफ द टॉप लैंड में आ गया हमें, दिस इज द विड्थ ऑफ द टॉप लैंड, तो विड्थ ऑफ द टॉप लैंड का फॉर्मूला 1 to 1.25 tph, tph पे 16 mm पहले स्टेप में निकाल चुके हैं, तो ये सॉल्व करने के बाद 18 mm आ गया। अब क्या बचा रिंग की डिजाइन में, मैंने बताया था रिंग की डिजाइन में बहुत सारे पैरामीटर हैं, करीब 6-7 पैरामीटर है ना, 6-7 पैरामीटर है। एक बार फिर से देखिए रिंग की डिजाइन में क्या क्या पैरामीटर है। सबसे पहले टीआर, फिर बीआर, है ना, टीआर मतलब रेडियल थिकनेस, बीआर मतलब एक्साइल थिकनेस, आर मतलब रिंग है, आर जो सब्सक्रिप्ट है वो रिंग के लिए है, तो इट इज द रेडियल थिकनेस, एक्साइल थिकनेस, देन नंबर ऑफ द रिंग्स, नंबर ऑफ द रिंग्स के बाद कितनी कंप्रेशन रिंग और कितनी ऑयल रिंग, और उसके बाद विड्थ ऑफ द लैंड, उसके बाद विड्थ ऑफ द टॉप लैंड, और टॉप लैंड के बाद अभी लास्ट पैरामीटर रह गया गैप। तो गैप के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, 3 to 4 टीआर, टीआर हमारे पास पहले ही आ चुका है, पहले टीआर हम निकाल चुके हैं 3.5 है, सॉल्व करने के बाद हमको 12 mm मिल गया, 10.5 से 14 के बीच में चाहिए तो हमने 12 मान लिया, है ना, ये आप 12 मान लें, 12.5 मान लें, 13 मान लें, सब सही है, बस 10.5 से 14 के बीच होना चाहिए, है ना। जनरली आप चाहें तो राउंड ऑफ ले लें, एवरेज करेंगे या तो पॉइंट में ना आए तो उसको राउंड ऑफ कर लीजिए एवरेज लेके, बस वही आपका हो जाएगा। अब आते हैं चौथे स्टेप पर, पिस्टन स्कर्ट। तो पिस्टन स्कर्ट का मतलब लेंथ ऑफ द स्कर्ट निकालनी है, तो ये एक जनरल फॉर्मूला है, ये मैक्सिमम गैस फोर्स है, तो ये हमारा पिस्टन कितना फोर्स बियर कर सकता है, इक्विलिब्रियम के लिए दोनों को इक्वल किया, तो यहां से हमने एलएस निकाल लिया। अब एलएस निकालने वक्त यहाँ पे हमको अजम्पशन क्या क्या करना पड़ा है, देखो 100 क्वेश्चन में डी दे रखा है, पी मैक्स दे रखा है, एलएस हमें निकालना है, डी 100 है। अब पीबीएस, पीबीएस मतलब बियरिंग प्रेशर फॉर द स्कर्ट, बियरिंग प्रेशर फॉर द स्कर्ट, तो वो हमने यहाँ अज्यूम किया कितना 0.4 मेगा पास्कल, बस इसको 0.4 रख के आपकी एलएस आ गई 98.17,
राउंड ऑफ करके 100 मिलीमीटर लेंथ ऑफ द स्कर्ट हमने मान लिया। ठीक है, राउंडिंग ऑफ में 1-2 मिलीमीटर में डिजाइन में कोई दिक्कत नहीं है, 98 पॉइंट समथिंग है, तो इट इज 100 mm। अब लेंथ ऑफ द स्कर्ट निकल गई, देन नेक्स्ट पैरामीटर इज लेंथ ऑफ द पिस्टन। अब लेंथ ऑफ द पिस्टन के लिए ये फॉर्मूला है ना, अभी हमने बोर्ड पे भी देखा था, विथ ऑफ द टॉप लेंथ z टाइम्स br, z-1 into b1 ls। b0 हमने 18 mm निकाला है, br हमने 3 निकाला है, नंबर ऑफ द रिंग्स 4 निकाल चुके हैं पहले स्टेप में, तो 4 - 1 ये 3 हो गया, b1 हमने 2.5 निकाला है, ls हमने अभी 100 निकाला है जस्ट कर, तो इस ls का यहाँ पे यूज करके हमने lp निकाल लिया 137.5 mm। तो लेंथ ऑफ द पिस्टन मिल गई। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक क्रॉस चेक और लगाते हैं कि L/D का रेशियो जो है वो 1 से 2 के बीच में आना चाहिए। तो ये लेंथ ऑफ द पिस्टन कितनी आई, 137, और आपका D कितना है, D मतलब बोर डायमीटर। बोर डायमीटर इस क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 100। तो यदि आप L और D का रेशियो करेंगे तो 137.5 अपॉन 100, तो आपका आ जाएगा 1.37। तो 1.37 इज इन बिटवीन 1 and 2। तो एक क्रॉस चेक भी हो गया कि L और D का रेशियो जो है वो 1 से 2 के बीच में हमारा लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, एक जनरल चेकिंग करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो L और D का रेशियो है वो 1 और 2 के बीच में लाई करना चाहिए, 1 से कम जा रहा है तो फिर इस L को हमें चेंज करना होगा, है ना, क्योंकि L/D का रेशियो यदि 1 से 2 के बीच में नहीं रखते हैं तो वर्किंग प्रोसीजर में या पिस्टन की वर्किंग में काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, है ना। तो अब आते हैं रीइंफोर्सिंग रिब। रिब के लिए फॉर्मूला सिंपल है, 1/32 1/2 TPH। अब थिकनेस ऑफ द पिस्टन हेड कितना है, 16। 5.33 से 8 के बीच में जूम करना है, 6 आ गया आंसर, नो प्रॉब्लम। अब लास्ट पॉइंट है डिजाइन ऑफ द पिस्टन पिन। पिस्टन पिन के लिए मैंने आपको बताया था कि इस पर 3 तरह के स्ट्रेस आते हैं, एक बियरिंग प्रेशर भी आ रहा है, इसको सियरिंग में भी चेक करते हैं, इसको बेंडिंग में भी चेक करते हैं। तो सबसे पहले इसकी लेंथ निकाल लेते हैं। तो देखो ये फोर्स है π/4 d² Pmax। अब देखो इस फोर्स में और स्कर्ट वाले फोर्स में फर्क है, इस फोर्स में 0.1 का मल्टीप्लाई नहीं है, स्कर्ट वाले फोर्स में 0.1 का मल्टीप्लाई है। देखिए ये यहाँ पे गलती कर देते हैं लोग, पिस्टन पर आने वाला जो साइड थ्रस्ट है तो मैक्सिमम फोर्स तो ये होता है π/4 d² Pmax, लेकिन इसमें 10%, इसका 10%, इसलिए इसको 0.1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं साइड थ्रस्ट के लिए। तो पिस्टन स्कर्ट के केस में हमको साइड थ्रस्ट को इक्विलिब्रियम में लाना पड़ता है, कनेक्टिंग रॉड की मूवमेंट से जो साइड थ्रस्ट जनरेट होता है। तो ये ध्यान रखिए, यहाँ पे 0.1 का मल्टीप्लाई है और बाकी जगह 0.1 का मल्टीप्लाई नहीं है, क्योंकि पिस्टन पिन पर पूरा का पूरा फोर्स आ रहा है। तो बस ये आपका एरिया हो गया, L1 into DO, LD एरिया हो गया, ये प्रेशर हो गया। प्रेशर आपने 25 अज्यूम कर लिया है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, बिटवीन फॉस्फर ब्रांच बुश एंड अलॉय स्टील। तो पिन तो हमने अलॉय स्टील की अज्यूम करी है, और जो कनेक्टिंग रॉड का जो स्मॉल एंड है, उसका जो बुश है जिसके अंदर पिस्टन पिन इंसर्ट है, उसका बुश का मटेरियल हमने फॉस्फर ब्रॉन्ज यूज किया है। तो इन दोनों के लिए जो प्रेशर की लिमिट है ये डाटा बुक से मिल जाती है, तो वो 25 मेगापास्कल है। ठीक है, और पिस्टन पिन की जो लेंथ है वो हम 0.45 D अज्यूम कर लिया है। हमने ये मान लिया है कि 45% पिन जो है वो कनेक्टिंग रॉड के बुश में घुसी हुई है ना। पिस्टन पिन तो लंबी होती है, लेकिन उसका कितना हिस्सा कनेक्टिंग रॉड के बुश में आया हुआ है, तो वो हमने मान लिया कि 45% हिस्सा कनेक्टिंग रॉड के बुश में आया है, इसलिए हमने L1 की जगह 0.45 D यानी कि 45 mm रखा है। करेक्ट। अब यहां से हमने DO निकाल लिया, DO मतलब आउटर डायमीटर ऑफ द पिन। इसको सॉल्व करके तो हमारा 35 mm आउटर डायमीटर आ गया। अब आया DI 0.6 DO होता है, मल्टीप्लाई किया तो 21 mm आ गया। एरिया पे क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया हॉलो पिन का π/4 DO² - DI², सॉल्व किया 615 आ गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, π/64 DO4 - DI4, सॉल्व किया ये आ गया, है ना। एरिया निकाल लिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया। क्यों निकाला, क्योंकि मुझे शियर में चेक करना है और बेंडिंग में चेक करना है, इसलिए मैंने ये एरिया और ये दोनों पहले ही निकाल के रख लिए। अब देखिए चेक फॉर शियर, चेक फॉर शियर क्या होता है, F/2A, डबल शियर की वजह से 2A हो गया। F पता है, A पता है ना, A मैंने पहले ही निकाल लिया, सॉल्व किया 31.89 आया। अब मेरा 31.89 आया, लेकिन अलॉयबल जो है वो 80 है। अलॉय स्टील के लिए जो अलॉयबल वैल्यू डाटा बुक से मिल जाएगी, तो 31.89 80 से कम है, इसलिए मेरी पिन शियर में सेफ है। तो शियर चेक हो गया। इसके बाद चेक फॉर बेंडिंग फेल्योर। बेंडिंग का फॉर्मूला क्या है, बेंडिंग मोमेंट स्ट्रेस का My/I,
m की वैल्यू बेंडिंग m की वैल्यू ये निकाल ली f d by 8 से। f क्या है, फोर्स है, मैक्सिमम फोर्स। d क्या है, डायमीटर, तो m आ गया। अब y क्या होता है, do by 2। do हमारा 35 है, 35 by 2, तो y की वैल्यू do by 2 17.5 हो गई। I मतलब इनर्शिया 64,115, इनर्शिया पहले ही निकाल लिया था हमने 64,115, इसको बस यहाँ पे यूज किया तो हमारा बेंडिंग स्ट्रेस आ गया 133.98। और जो अलोएबल है वो 175 है अलॉय स्टील के लिए बेंडिंग में। तो चूं बिकॉज दिस वैल्यू इज लेस देन 175, सो आवर पिस्टन पिन इज सेफ अगेंस्ट बेंडिंग फेल्योर। तो हमारी पिन बेंडिंग में भी सेफ है। सो दिस कंप्लीट्स दिस क्वेश्चन, है ना। टाइम भी खत्म हो रहा है, 3:59 हो गए हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन हमने पूरा कंप्लीट कर लिया, ये फाइल में आपको भेज दूंगा। और कोई आपकी क्वेरी है तो बता दीजिए जल्दी से, और नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट कनेक्टिंग रॉड, है ना। ये फाइल भेज दूंगा, ये लंबा क्वेश्चन है, इसको आप आराम से और प्रैक्टिस कर लीजिएगा घर पे। चलिए ठीक है, तो एंड करूं मीटिंग या मैं आपके चैट देखूं, किसी ने कुछ चैट? यस सर, नो सर, नो सर। आकाश नंदा भी सर Yes, sir. डिस्कनेक्ट हो गया है सर। आकाश अटेंडेंस सर उसका नेट खत्म मैंने हो गया। ज्वाइन किया है ना 5 मिनट के लिए, तो उसका नाम आ जाएगा मेरे पास, यदि ज्वाइन किया होगा तो अटेंडेंस मिल जाएगी। ओके सर, ठीक है, हाँ चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच, हैप्पी थैंक यू सर। थैंक यू सर, Thank थैंक you, यू, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. ओके।